Good morning and praise the Lord, AGNI TV viewers. सुप्रभात और जय मसीह की AGNI TV व्यूअर्स। Good to see you all this Monday morning seeking first सभी को devotion. देख के बहुत ही अच्छा लगा इस मंडे मॉर्निंग सीकिंग फर्स्ट I डिवोशन। pray as we begin this devotion, it's going to be a meaningful day in your life. हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये ध्यान के समय पर आपके जीवन में परमेश्वर एक काम करने वाले हैं। Joshua chapter 21 verse number 45 says, यहोशू उसका 21 का 45 ऐसा कहता है, Not one of all the Lord's good promises to Israel failed, everyone fulfilled. परमेश्वर का वचन कहते हैं जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इजराइल के घराने से कही थी उनमें से कोई भी बात ना छूटी, सब के सब पूरी हुई। When God brought Israelites out of Egypt to Canaan, He promised them with many promises. और जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से कनान देश लेके गया, उन्होंने बहुत सारे वादाओं को लोगों के साथ बांधी। Joshua chapter 21 says, after distributing the lands, it reminds that God fulfilled all the promises He's promised to the Israelites. और यहोशू उसका 21 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि सारे जमीन को भाग करने के बाद परमेश्वर ने, हम लोग देख पाते हैं परमेश्वर ने हर एक वादाओं को उनके जीवन में पूरा किया। And through this passage we can understand our God is a promise keeping God. और इस पद के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जो भी वादा करता है वो पूरा करता है। Sometimes we do discouraged in our lives. कभी कभी हम थोड़ा सा घुल मिल जाते हैं। I know it's true that it's a promise of God that helps us to move forward in life. और ये सच बात है कि परमेश्वर का वादा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने में When सहायता God करता has है। called us, He promised us. और जब परमेश्वर ने हमें बुलाया, उन्होंने हमसे वादा किया है। When we go through difficult times, God promises us with His promises. जब हम लोग तकलीफ समस्या के बीच से जाते हैं, परमेश्वर हमसे वाचाओं को बांधते हैं। Each day we face in our lives with the promises of God. हर एक दिन हम लोग अपने जीवन में जो जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वादा But को करते हैं। sometimes being humans, we get distracted and be discouraged. Why God's promises are not fulfilled in my life. और कभी कभी हम मनुष्य होने के कारण हमारा दिल टूट जाता है कि हम हर दिन कैसे परमेश्वर के वादों को हमारे जीवन में नहीं देख पाते हैं। That's why the book of Numbers chapter 23 verse number 19 reminds us. इसलिए गिनती का पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 19 ऐसा कहता है, God is not human that He should lie, not human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्यों जो कुछ उसने कहा उसने ना करा, क्या उसने वचन देकर उसे पूरा ना करा। The Bible says, my God is not a human that He should lie. परमेश्वर वचन ऐसा कहता है कि हमारा परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। This morning I want to encourage you, beloved, that my God, if He has promised you something in our lives, He will definitely fulfill that promises. और बहनों, आज की सुबह मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो भी आपके जीवन में वाचाओं को बांधे हैं, परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं। Sometime that happens in our lives, what happens in our lives is, और कभी कभी हमारे जीवन में होता है क्या, when sometimes God promised me something, कभी कभी परमेश्वर ने हमसे कुछ वाचाओं को बांधा, but if I am not walking the worthy of manner, but that promise is passed on to the next generation. अगर हम परमेश्वर के राह पे सही तरह से नहीं चलते, वो हमारे संतति में आगे बढ़ जाता है। It's not necessarily, God should fulfill the promises even if you don't follow according to God's ways. ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर अपने वादा को तोड़ देंगे अगर आप सही राह पे नहीं चलते हैं। If you follow according to the ways of God, God will definitely fulfill the promises in your life. अगर आप परमेश्वर के राह में सच्चाई से चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अपने वादाओं को पूरा करेंगे। Though God promises to the Israelites, though there were many people, but during the journey many lost their lives, but till God kept His promise. परमेश्वर ने इस्राएल की कितने ही लोगों के साथ एक वचन को किया, पर हम लोग देख सकते हैं इस राह में हम लोग देखते हैं बहुत ही लोग पीछे छूट गए, बहुत ही लोग पीछे हो गए। And this morning I want to encourage you, if you and me want God's promises to be fulfilled in our lives, we will follow 4 keys in our lives. और आज की सुबह मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, 4 चाबियों को हमें जरूरी है। The first key to fulfillment of God's promises is
to holding on our faith. पहला चाबी जिससे हम परमेश्वर के उस वादों को अपने जीवन में देख सकते हैं वो है अपने विश्वास को धरे रखो। If you ever been to a park, children park, and there is a ride called, roller coaster. अगर आप कभी अम्यूजमेंट पार्क या बच्चों के पार्क में गए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं वहां पे एक राइड होता है जिसको बोलते हैं रोलर कोस्टर। In roller coaster, when you get into that small car, they will lock you with a lock. और हम लोग देखते हैं जब आप उस रोलर कोस्टर के काट में बैठते हैं तो वो एक लॉक ऑन को लगाते हैं। The reason is because the journey you go through sometimes is high, sometimes low, sometimes upper, sometimes lower. Ups and downs are parts of our lives. और हम लोग देख सकते हैं ये क्यों होता है, क्योंकि वो रास्ता जो है वो रोलर कोस्टर जो है कभी ऊंचा है, कभी नीचा है, कभी ऊपर कभी नीचे जाती रहती है। It doesn't mean that when God promised you something, that means your roads to life is very easy. ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर ने जब आपसे कोई वादा को किया है वो रास्ता बहुत ही आसान सरल होगा। We will have ups and downs in our lives. हमारे जीवन में ऊंचाई होगी, कभी नीचाई होगी। It happens to everyone. ये हर किसी के साथ होता है। But only one thing you need to do is this. पर आपको बस एक ही चीज करना है, holding on to your faith. अपने विश्वास को थामे रहिए। My faith is in the Lord who is the author and the finisher of our lives. हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पे है जो रचयिता है हमारे जीवनों का। Faith is in the Lord who never breaks his promise. हमारा वादा हमारे परमेश्वर पे है जो कभी भी अपने वादा को नहीं When you hold on to your faith, doesn't matter how the roads are difficult in our lives, still you will reach the destination. हम अपने विश्वास को थामे रखते हैं, चाहे जीवन में जितने भी ऊंचाई जितने भी नीचाई हो आप जरूर पहुंचेंगे। Never allow unbelief to come and ruin your life. कभी भी अविश्वास को अपने जीवन को नष्ट करने ना दे। Then sometimes the enemy come and whisper in your life and say, hey, God has left you and nothing is going to happen. You say, no devil, it's not going to happen that way. I'm still holding on to my faith. कभी कभी शत्रु हमारे जीवन में ऐसे आके कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होगा, परमेश्वर ने जो वादा किया वो नहीं देख पाओगे। पर आपको ऐसा कहना है, शत्रु परमेश्वर के वादा को मैं अपने जीवन में देखूंगा। Number two, second key for God's promises to be fulfilled in our lives is being obedient. और दूसरा चाबी जो परमेश्वर के वादाओं को अपने जीवन में देखने के लिए हो जरूरी है वो है आज्ञाकारी रहना। Being obedient brings God's promises to be fulfilled in our lives. और आज्ञाकारी रहना हमारे जीवन में परमेश्वर के वादा को देखने के लिए बहुत ही जरूरी है। Many times the enemy works in our lives using our emotions. और बहुत ही समय शत्रु हमारे जीवन में काम करता है हमारे इमोशंस को लेके, हमारे भावनाओं को लेके। When we are too much emotional, that is the time we disobey God. और जब हम लोग बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं उसी समय हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं। The Bible says, God spoke to Moses, but Moses did not, obey God for a single minute. He disobeyed. That is the reason God said, Moses, you're only going to see the promised land. You're not going to enter the promised land. और जब परमेश्वर ने मूसा से कुछ आज्ञा दिया तो मूसा ने क्या किया, उसने परमेश्वर के विरुद्ध गया और परमेश्वर ने उसको ऐसा कहा कि मूसा तुम कभी भी उस वादा के उस जगह पे नहीं जा पाओगे, कनान देश को देख पाओगे पर कभी। Sometimes the enemy comes and tells you, hey, listen, you are still holding to the promises of God. Nothing is going to happen. Go and do this. Go and sin. Go and do this. Ignore God. Whatever you feel like, do it. Don't do that. Say, I'm going to be obedient to God. What God tells me, I will do it. I still believe that God's promises will fulfill my life. कभी शत्रु हमारे जीवन में ऐसा के कहते हैं कि परमेश्वर अपने वादा को नहीं निभाएंगे, तुम अभी भी क्या पकड़े हुए हो, जाओ पाप करो, जाओ ये करो। पर आपको ऐसा कहना है नहीं, परमेश्वर के वादा को अपने जीवन में मैं देखने वाला हूं, मैं आज्ञाकारी रहूंगा और परमेश्वर के वादा को देखूंगा। The third key for God's promises to be fulfilled in our lives, तीसरा चाबी जो है परमेश्वर के वादा को अपने जीवन में देखने के लिए जरूरी है, trusting God brings God's promises to be fulfilled. तीसरा है कि हमें परमेश्वर के वादाओं पे, परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। The Bible says if the righteous will fall 7 times but still he will get up. परमेश्वर का वचन कहते हैं धर्मी 7 बार गिरेंगे पर फिर भी वो खड़े होंगे। Sometimes in our lives, even when we trust God also, sometimes we, there is
there comes to a time called totally blackout. और कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे समय आता है हम परमेश्वर पे विश्वास तो रखते हैं पर एक समय हर जगह अंधकार होगा। You don't see any way out in your life. आप अपने जीवन में कोई भी बाहर का रास्ता नहीं You देख don't पाएंगे। see what is going to happen next. आप नहीं देख पा रहे कि आगे क्या होगा, But still you holding on to the promises of God. पर तब भी आप परमेश्वर के उस वचनों पे वादाओं पे होल्ड। I tell you, even though you don't understand situation, still trust God. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप परमेश्वर के बातों को नहीं भी समझे तब भी परमेश्वर पे The विश्वास best रखें। example I can tell you is Job. और सबसे उत्तम जो एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ वो है योग का। He said, अय्यूब का though he slays me, still I will trust him. अय्यूब ऐसा कहते हैं अगर परमेश्वर मुझे नाश भी करे तब भी मैं उन पर अपना विश्वास को रखूंगा। Though he was worthy of receiving double portion in his life. और वो योग्य था दुगना अभिषेक अपने जीवन में पाने के लिए। दूसरा आशीष। Israelites, they did not trust God. They lost their blessings. इजराइली ने परमेश्वर को विश्वास नहीं किया और इस आशीष को उन्होंने खोया। Beloved, this morning I want to tell you, trust God even when you don't understand. भाई और बहनों आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर भी आप नहीं देख पा रहे कुछ परमेश्वर पर विश्वास को रखें God will help you to come out. और परमेश्वर आपको निकलने में सहायता करेंगे। You won't even realize that you already crossed all the rivers. और आप जान भी नहीं पाएंगे कि हर एक नदी आप पार कर लिए हैं। God will help you to accomplish that promises in your life. परमेश्वर आपको सहायता करेंगे उन वादाओं को अपने जीवन में। Last but not the least, the perseverance brings God's promises in your life. और चौथा और सबसे अंतिम में हम लोग देखते हैं कि अटलता हमारे जीवन में परमेश्वर के वादा को देखने के लिए सहायता करता है। Never give up attitude. कभी भी इस धैर्य को मत छोड़िएगा। I am not going to give up. मैं कभी भी छोड़ने नहीं वाला I'm हूँ। not going to give up because I failed. मैं कभी भी छोड़ने नहीं वाला हूँ क्योंकि मैं असफल रहा। Bible never said that we'll never fail. मैं ऐसे कभी भी नहीं कहने वाला कि मैं असफल होने वाला हूँ। Bible does say even if we fail, God never fails. परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है अगर हम भी असफल रहे पर परमेश्वर कभी भी असफल नहीं हो। You know, through our failures, God will make us more stronger day by day. असफलताओं के बीच से परमेश्वर में और भी धैर्य से बढ़ेंगे। Even since you fail, don't stop attempting next. अगर हम लोग असफल भी हुए फिर से उसको करने के लिए मत रोकिएगा। We failed means doesn't mean God will not fulfill His promises in our lives. अगर हम असफल रहे तब भी ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर अपने वादों को हमारे जीवन में नहीं Many करेंगे। people think, oh, my business failed, my ministry failed, my family failed, so everything is done, then I'm going to do this. अगर हम लोग देखते हैं कि हमारा बिजनेस चौपट हो गया, हम लोग देखते हैं परमेश्वर की सेवा को हम लोग नहीं कर सकता, घर संसार हो गया, हम लोग देखते हैं हम असफल रहे। I want to tell you today, मैं आपसे कहना चाहता don't हूँ give up. कभी भी मत को छोड़े, Don't give up. आसानी से नहीं छोड़े, Keep pushing on. आगे बढ़ते रहे Look at your promises. और अपने वादाओं को देखे। Each and every promises every day. Claim the promises and say, Lord, I'm holding on to your promises. और हर दिन ऐसा कहे परमेश्वर आपके वादाओं को मैं अपने जीवन में रखे रह रहा हूँ। God will fulfill all the promises in your life. परमेश्वर हर एक वादाओं को अपने जीवन में करेंगे। You will be victorious in your life. आप अपने जीवन में उस जय को And पाएंगे। I pray as we begin this day, God will fulfill His promises in your life today. और आज मेरा ये प्रार्थना कि आज के दिन जब हम ये शुरू कर रहे हैं परमेश्वर अपने वादाओं को अपने जीवन में You करें। will experience God's promises fulfilling you. आप अपने जीवन में परमेश्वर के उस वादा को देख Don't पाएंगे। give up, beloved. छोड़िए नहीं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Dear loving Heavenly Father, thank you for this wonderful day. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के We लिए। commit this wonderful day in your mighty hand. इस दिन को परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पण What करते a हैं। wonderful God we worship. क्या ही धन्य परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। Thank you, Lord, for speaking to us today and reminding us that you are a God who never fails us. You are a God, is a keeping God. धन्यवाद परमेश्वर आज हमें दिखाने के लिए समझाने के लिए कि आप वादाओं को निभाने वाले परमेश्वर है। I commit each and every individual, those who are watching this video, Lord, you bless them abundantly. परमेश्वर हर एक लोग जो इस वीडियो को इस समय देख रहे प्रभु हर किसी को आप आशीष कीजिए। If someone is discouraged, worried, Lord, troubled this morning, Lord, your word, Lord, touch them and let your word bring peace and Lord, encouragement in their lives. परमेश्वर अगर कोई अपने दिल को छू रहे परमेश्वर छोड़ रहे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन प्रभु उनको छूने के लिए उनसे बातें करने के लिए प्रभु As they continue this journey, और परमेश्वर जैसे वो इस राह पे help them to
hold on to you, Jesus. परमेश्वर वो आपके पकड़े रहे प्रभु। Oh Lord, bless them abundantly. प्रभु उनको आप आशीष कीजिए। While they go out, come in, while they work, do ministry, while they be at home, Lord, you be with us in all situations. जब वो प्रभु बाहर जाए, काम करे प्रभु, पढ़ाई लिखाई करे, परमेश्वर आपकी सेवा करे। Meet all the needs in the name of Jesus. हर एक जरूरत को आप पूरा कीजिए प्रभु। Keep us away from all kinds of harms and हर dangers. एक तकलीफ, हर एक दुख से आप दूर रखिए If परमेश्वर। somebody is sick this morning, touch that person and heal that अगर person. कोई बीमार है परमेश्वर आपको छूने के लिए, चंगा करने के लिए हम Bless us together, Lord. उनको आशीष कीजिए We प्रभु। give you all the praise and glory and honor to you. सारी महिमा, सारे गौरव आप ही को In दे। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। All God's people say, सभी परमेश्वर के लोग कहेंगे, Amen. आमेन। I wish you a wonderful day. सभी को एक अच्छा दिन मुबारक। Blessing. ब्लेसिंग्स, Amen. आशीष, आमेन।